ایڈ وڈ گو بک. ہمیں تو اس کو بھی آپٹیمائز کرنا ہے نا, 10 سیکنڈ ہے, 20 سیکنڈ ہے, 30 سیکنڈ ہے, تھیمیٹک ہے, 1 منٹ اور ابو ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کاسٹ ہر سیکنڈ کی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو کیا میں ساری چیزیں 30 سیکنڈ میں دکھا سکتا ہوں؟ کیا میں ساری چیزیں 20 سیکنڈ میں دکھا سکتا ہوں؟ کیا میں ساری چیزیں 1 منٹ میں دکھا سکتا ہوں؟ تو وہ بھی دیکھنا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہے پلیٹ فارم کیا ہوگا کمیونیکیشن کا میرے, جو ہم نے کوارڈنٹ میں بنایا تھا کہ جی یہ اویلیبل پلیٹ فارمز جو ہیں, ایکشن دس پلیٹ فارمز جو ہیں یہ ہیں, اس میں سے یہ والا انیکوائڈ ہے تو یہ پوزیشننگ پلیٹ فارم میں اٹھا لیتا ہوں. ریممبر دیٹ, کچھ یاد ہے ان کا کوارڈنٹ میں نہیں ہے, پرسیپچل میپ کوارڈنٹ میں. تو پرسیپشن میپ جب آپ دیکھتے ہو اپنا اور کہتے ہو کہ جی دس از دی پوزیشننگ ویئر آئی وڈ وانٹ ٹو گو, جب آپ پوزیشننگ ڈیسائڈ کر لیتے ہو, فار ایگزامپل شوز کیٹیگری میں ہش پپیز کس پر ہے, اور گلوبلی ہش پپیز از کمفرٹ, ٹھیک ہے. اب ایڈیڈاس کس پر ہے, اسپورٹس, ٹھیک ہے. اب یہ دو الگ الگ جان رہے ہیں نا بالکل, ان کی ایڈورٹیزمنٹ بھی اسی حساب سے ہی ہوگی, ٹھیک ہے. سو پوزیشننگ میں نے پہلے ڈیسائڈ کی کہ میں نے رہنا کس اسپیس میں. ہش پپیز کل سے اگر جاگرز بنانے لگ جائے تو وہ صرف کمفرٹ کے اوپر پھر نہیں کھیل سکتا, بیکاز اسپورٹس مین ڈو ناٹ لک فار کمفرٹ, دے لک فار مینی ادر تھنگس آلسو, ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے میں نے کیا ڈیسائڈ کی, پوزیشننگ ڈیسائڈ کر کے کریٹو والے سے کہا یار یہ پوزیشننگ میں بنانا چاہتا ہوں, یہ امیج کریٹ کرنا چاہتا ہوں میں کنزیومر کے دماغ میں اپنے برانڈ کا, ینگ برانڈ ہو. اچھا, جب آپ کنسیو کر رہے ہوتے ہیں برانڈ کو تو آپ ظاہر سی بات ہے کیٹیگری کے حساب سے آپ پرسنالٹی, برانڈ پرسنالٹی وغیرہ بھی کنزیومر سے کر رہے ہوتے ہیں ڈسکس, ٹھیک ہے. ینگ برانڈ ہونا چاہیے یا اولڈ برانڈ ہونا چاہیے, should it sound like more male brand or female brand. میں اسکوٹی لاؤں گا, اس کا پرسونا کیا بننا چاہیے, میل بننا چاہیے, فیمیل بننا چاہیے. سو نو فیمیل would want to ride a male, ٹھیک ہے. she wants a companion with whom she is comfortable, she wants a friend, ٹھیک ہے. she don't want an old person to carry her load, she wants someone young, strong yet sleek, smart. This is the persona a woman has about scooty. تو یہ بھی میں کریٹو والوں کو انپٹ کروں گا, جو یو این اے کروں گا اس میں یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. یو این اے جب میں کروں گا تو اس میں یہ ساری چیزیں نکلیں گی کہ کس طرح کا پرسونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا کمپیٹیو جو لوگ ہیں, کمپیٹیو جو برانڈس ہیں, ان کا کیا پرسونا ہے, ان سے کیسے ڈسٹنگوش ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ٹوتھ پیسٹ کیٹیگری میں ظاہر سی بات ہے دیر از نو ینگ اینڈ اولڈ, بٹ جب آپ کنزیومر سے بات کرتے ہیں, آئی ریممبر جب میکلینز ایک برانڈ ہوا کرتا تھا جو کہ مارکیٹ لیڈر تھا, سب سے بڑا برانڈ تھا پاکستان کا, میکلینز گلوبل برانڈ ہے, ابھی بھی شاید گلوب میں کہیں نہ کہیں دکھتا ہوگا. جب اس کا ڈکلائن شروع ہوا تو کچھ جو نئے برانڈ, کولگیٹ فار ایگزامپل اس وقت شروع ہو رہا تھا نا, تو کولگیٹ واز پرسیوڈ ایز اے بچہ, whereas Maclean's was perceived as someone very senior, 60 سال سے پلس, ریٹائرڈ, جھگڑالو, غصہ ور, بچوں کو گھر کے ڈانٹتا رہتا ہے, کائنڈ آف اے پرسن. یہ پرسونا نکلا, ٹھیک ہے. جب بینکنگ میں ہم نے کیا تو میزان واز اے ینگ مولوی ٹائپ, پڑھا لکھا MBA بچہ, yet caring داڑھی and all, it was میزان. HPL was smart, جو کہنا چاہیے جسے بزنس مین, بزنس پروفیشنل ٹائپ کا. دیٹ آف نیشنل بینک اینڈ UBLs اینڈ یہ سارے جو ہے اولڈ, 60 سال پلس, بالکل ریٹائرڈ, بینچ پہ بیٹھے ہوئے اخبار پڑھنے والے. اور جو الفلا ٹائپ کے ہیں یہ سارے ینگ اور بہت ایجائل اور اسپورٹی ٹائپ کے. تو banking has nothing to do with these personas, but these personas help you understand the psychological life cycle of the brand.
कितना एज कर चुका है ब्रांड, इसको रिजुविनेट करना है, अगर इसको दोबारा यंग बनाने तो क्या करना पड़ेगा? मैनी अदर एग्जांपल। अगर आप वेबसाइट वगैरह देखें तो उनमें ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं सारे यंग हैं और डिजिटलाइज भी उनकी पूरी वेबसाइट उन्होंने इतने डिजिटल पेज बनाई है कि वो देखने भी लग रहा है कि मैं यही टारगेट है। एग्जैक्टली। सो क्रिएटिव जो है आपका, उसको यूएनए से सारे इनपुट्स निकाल कर, जब क्वालिटेटिव करते हैं यूएनए का, ये सारी चीज़ें आप निकाल रहे होते हैं। ये सारे कि जी किस तरह का पर्सोना बन सकता है, कंज्यूमर ब्रांड पर्सोना क्या बनेगा, ब्रांड परसेप्शन किस जॉनरे में जाना है आपको, किस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, फिर वो डिसाइड करते हैं उसकी बेस पे कि जी ओके माय क्रिएटिव आइडिया इज़ टू लाइक गुड मिल्क। ये क्रिएटिव का काम था कि यार मैं स्लाइस ऑफ लाइफ दिखाऊंगा और म्यूज़िक बेस्ड होगा, ठीक है। एक ही सर यहाँ पे थोड़ा अगर आप मैं तो था मैं और अंदर तो उस टाइम पे थे, अगर आप सबको भी आइडिया दे दें, जो उन्होंने EVM के लिए जो PC में गए थे वहाँ पे EVM मीटिंग के साथ उनकी क्रिएटिव एजेंसी भी आई हुई थी, ऑगे भी अगर मैं सही तक प्रोनाउंस करूँ, तो व्हाट वाज देयर रोल एट दैट, जो मेक एबल को उनकी जो उनका रोल ये था उस ब्रांड वर्कशॉप में कि वो ये समझें कि कंपटीशन की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस निकल कर आ रही है, किन रीजन्स में क्या यूज़र प्रोफाइल है और उनके ब्रांड्स का क्या यूज़र प्रोफाइल है। तरंग फॉर एग्जांपल, मैं यूज़र प्रोफाइल क्यों कह रहा हूँ, तरंग एट वन पॉइंट दिस वाज द लार्जेस्ट सेलिंग टी वाइटनर इन पाकिस्तान। एड याद करो अगर तरंग के, इट वाज प्रीडोमिनेटली पंजाबी ड्रिवन एड, पंजाबी कल्चर, बिल्कुल पंजाबी फिल्मों जैसे डांस और सब कुछ था उसमें। यूजर प्रोफाइल प्रीडोमिनेटली पंजाब और केपी, ठीक है। केपी क्यों? मिल्क डेफिशिएंट मार्केट है, टी वाइटनिंग के लिए वाइटनर्स ही यूज होते हैं वहाँ पे, मिल्क डेफिशिएंट है वो वहाँ पे। जानवर क्यों होता है पहाड़ी सर्वाइव मुश्किल होता है जानवर। फिर ग्रेजिंग लैंड नहीं है आपकी, पंजाब और सिंध में ग्रेजिंग लैंड होती है, मौसम इंटेंस होता है, इस वजह से जनरली मिलता फार्मिंग इतनी नहीं है नॉर्थ में जितनी आपकी पंजाब और सिंध में, ठीक है। तो EVM के हाँ, तो क्रिएटिव वाले का बेसिकली काम ये था कि वो समझे कि उसके ब्रांड की क्या परसेप्शंस हैं, किन प्लेटफॉर्म्स, कौन से एक्वायर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे, उनके ब्रांड के या कंपटीशन के, और कौन से एम्प्टी प्लेटफॉर्म्स हैं परसेप्शन मैप में जिन पे वो जा सकते हैं। क्या ग्लूको के लिए, एनर्जी के लिए कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता है? आई जस्ट लव टू थिंक कि क्रिएटिव यही सोचेगा ना, क्या ग्लूको के लिए एनर्जी के अलावा कुछ और हो सकता है? क्या टक अगर हल्की फुल्की भूख है तो मैं अपने सॉल्ट डिश को हल्की फुल्की भूख के अलावा कहीं कुछ कर सकता हूँ? हल्की फुल्की भूख कितना इंट्रेंच्ड है टक से, लाइक वो हल्की फुल्की भूख तो है पर लोग क्या उसको चाय के साथ लेना प्रेफर कर रहे हैं, Something like that. या वो खाने से पहले ही मतलब अपनी भूख को वो करने के लिए यूज कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि वो कुछ भी हो सकता है। क्रिएटिव वाले का बेसिकली काम ये है कि एब्जॉर्ब करे सारी इन्फॉर्मेशन को, सिंथेसाइज करे, और जो ब्रांड की तरफ से डायरेक्शन है कि जी मुझे इस तरफ जाना है, इस पोजीशनिंग को एक्वायर करना है, उस पोजीशनिंग तक पहुंचने के लिए उनको कोई क्रिएटिव आइडिया दे। तेरी मेहरबानी वाज व्हाट? क्लैरिटी ऑफ वॉइस मुझे अपनी डिपिक्ट करनी है ब्रांड की, कि मेरे ब्रांड की सिग्नल स्ट्रेंथ ऐसी है कि ये बहुत क्लियर वॉइस देता है। उसने ह्यूमर का रूट लिया, और ह्यूमर का रूट लेके क्या एस्टैब्लिश कर रहा है कि यार यूफोन आपको देता है बिल्कुल क्लियर वॉइस। क्लियर वॉइस मैटर्स, वो जो पीछे पूरा साउंड इसका ही चल रहा था, क्लियर वॉइस मैटर्स। वो उसने कहा कि जी साफ आवाज से फर्क तो पड़ता है, तो आप कहें कि यार मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, आवाज़ कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आवाज़ गड़बड़ होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मैटर्स, सो यू शुड स्विच टू यूफोन। ये परसेप्शन था जो उन्होंने क्रिएट करना था। नरम सा तो है, मैंने तुम्हें एक नरम सा गद्दा लाने का था, हाँ गद्दा का था, मैं तो गधा लेकर आ गया, ठीक है। क्लियर वॉइस अगेन एक और एग्जीक्यूशन, ह्यूमर का ही रूट है, क्लियर वॉइस, ठीक है। सो
क्रिएटिव वाले का बेसिकली काम ये होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप देंगे उसको पोजिशनिंग, पॉसिबल पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म जो देंगे, उस पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म तक उसको यूटिलाइज करने का, उस पोजिशनिंग को क्रिएट करने का वो कौन सा रूट लेता है, ये क्रिएटिव का काम है. ह्यूमर लेता है, स्लाइस ऑफ लाइफ लेता है, इमोशनल लेता है, फंक्शनल लेता है, ठीक है, रैशनल लेता है. जो भी वो रूट ले वो लेकर आपको बताएगा कि जी ये पॉसिबल आइडिया. तो जब वो कॉन्सेप्ट बनाएगा, अब मे बी वो एक लाए फंक्शनल और एक लाए इमोशनल, अभी दो कॉन्सेप्ट होंगे कि जी एक तो है कि ये टच स्क्रीन जो है इसकी फंक्शनैलिटी पहली दफ़ा आप टच फोन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टच फोन की फंक्शनैलिटी शुड बी द फोकस, फंक्शनल अपील आप क्रिएट करें. दूसरा है कि आप लाइफ स्टाइल क्रिएट करें कि एक लड़का है बड़ा ट्रेंडी है और बहुत जैसी है और बाकी सब जो है वो बटन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और वो अपना निकालता है. तो एक है इमोशनल अपील, टू बिकम ट्रेंडी, टू बिकम यू नो, और दूसरी है फंक्शनल कि जी अब बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक स्वैप से वीडियो देख सकते हैं. ये फंक्शनल अपील है. दोनों कॉन्सेप्ट हैं. क्या मैं दो ऐड बनाऊँ या एक के अंदर दोनों दिखाऊँ या व्हाटएवर. तो जब मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट होंगे तो मुझे कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करनी पड़ेगी. कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के लिए क्या चीज़ है कॉन्सेप्ट टेस्ट? कॉन्सेप्ट टेस्ट इज प्राइमरली इट्स अ प्रॉक्सी फॉर योर एडवर्टाइजमेंट. जो भी कम्युनिकेशन है आपकी उसका प्रॉक्सी है. जिस तरह से लोग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे बिल्कुल वही तरीका उनका होगा जब वो ब्रांड का कोई ऐड देखेंगे ऑन टीवी तो वो रिएक्ट करेंगे. ठीक है. अच्छा, अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. डू नॉट कंफ्यूज इट विद द स्टोरी बोर्ड. ऐड के स्टोरी बोर्ड अलग चीज़ है. अभी तो हम ऐड के आइडिया की बात कर रहे हैं. अ कॉन्सेप्ट इज द आइडिया ऑफ द ऐड और अ प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन. कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड नहीं है. कॉन्सेप्ट जो है ऐड कॉन्सेप्ट होती है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी टैग कॉन्सेप्ट तो हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये भी हम ऐड कॉन्सेप्ट की बात. अभी हम बात कर रहे हैं ओवरऑल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है. So its proxy of consumer reaction to any stimuli in the marketplace, that is, a concept should be treated as the brand communication to respective target audience.